organization structure. Okay. So what do you mean by organization structure? So you people are working in a company. So there is some different hierarchy available in the company. Suppose somebody is working as a junior officer, okay, and somebody might be working as a supervisor, okay, or senior officer, okay. Above him there might be some assistant manager. Above him there might be a deputy manager. Both him there is maybe AGM, then DGM, okay. Above that there may be VP, okay, or CEO or VP, okay. So this is what is this, guys? This is hierarchy, okay. This is called as a hierarchy. So similarly, in SAP there is an organized structure. So this is your hierarchy structure in your company. Agreed? In your company, this is your organization structure. Okay. So similarly in SAP there is an organization structure. Okay. So how organization structure look like in SAP? Okay. So you can see there is a company. Below company there is a company code. Below company code there is a plant. In plant there are storage locations. So for PP perspective, this is called as an organization structure. Okay. From PP module perspective, this is called as an organization structure. So let us understand some terminology in this. What is company, company code, what is plant, and rest of the things we are trying to understand today. Okay. So what is organization structure? What is the important elements of organization structure? What is the definition of company, plant, storage location, and overview of organization structure in MM and SD? This is our agenda of today's session. Okay. So first question is, what is the organization structure? So in SAP PP model, the organization structure defines the location of manufacturing plant and storage location within the plant. Okay. At the top of the structure, you have company and company code. Then each company code has different plant and storage location. Okay. At the top, there is a company and company code, and every company code is having plant and storage location. Okay. So what is this company or client? Okay. Now, if you see over here, so this is the company. Now, what is the company? So suppose take example. Okay. Can you hear me, Tim? Hello? Am I audible? Vishal, am I audible? Ajay? Yes, yes, sir. You're audible. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. So guys, see what happened. What is a company? Company is nothing but the organization which is going to use SAP as their ERP software. Okay. Okay. Suppose, for example, Tata Motors, one example. Okay. They are using SAP as their ERP tool. Okay. Now, though the company is Tata Motors, so we can say TML is equal to company is equal to your client. Okay. So this is known as a company or client. Okay. Now there is another concept is there, service provider. Now who is service provider? Those who are going to do installation of SAP or who are going to support the SAP related issue, those are known as a service provider. Okay. And provide support. For example, take Infosys, IBM, Accenture, and many more. Okay. Getting my point? So these are the IT companies who are going, because Tata Motors is the end user. Okay. They are the client. For those clients, these are the service provider. They are going to provide the SAP services. Okay. Now,
what they are going to provide? They are going to provide SAP services. Now SAP itself a company. Okay, SAP itself is a company, and they are providing ERP software that is also known as a SAP, System Application and Programming. Okay, okay. So the full form of SAP is System Application and Programming. Now SAP is a product. Okay, SAP is a company itself. The product, ERP product, the name is also SAP. Okay, what they are allowing, what they are doing, they are actually, their product is going to be used by Tata Motors, but for that SAP is not going to do direct installation. They have their installation partner or service provider like Infosys, IBM, Accenture. Now try to understand in a very common language, suppose you buy a car. Okay, you used to buy a car. Okay, and your car is manufactured by any company. Suppose take example, let's take example Tata Motors example. They manufacture car, but you are the end user. Whenever your car is getting breakdown or you need to go for servicing, you're not going directly to the Tata Motors. They have their authorized service center. Agreed? Yes, sir. If you buy Apple mobile or Apple product or any product, if there is any issue, you have to go to their service provider or service center. Okay, those are not exactly handled by Apple or Tata Motors like a OEM manufacturer. They are some other service provider who are good in that field, and they take ownership of everything and they do on behalf of that company. Okay, company given them rights. Okay, anything goes right, goes beyond their control, so they will directly contact the company. Suppose take example, आपकी गाड़ी आपने सर्विसिंग को लेके गए and you found that it is in within warranty and something goes breakdown is very severe, and वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये हो गया, जो आपका प्रोडक्ट है जिसका वारंटी में है प्रोडक्ट, वो फेल हो चुका है. तो वो सर्विस प्रोवाइडर, मान लो कि आप किसी भी XYZ सर्विस प्रोवाइडर के पास गए हो, वो बोलता है कि सर आपका ये गाड़ी का प्रोडक्ट खराब हो चुका है, आपको वारंटी के अंदर ये बदल के मिलेगा. सो इन दैट केस व्हाट दे डू, दे गो टू द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर. एप्पल के पास जाएंगे, एप्पल के पास से वो बैटरी वगैरह लेके आएंगे, 2-4 दिन आपका प्रोडक्ट वहां पे रहेगा, मोबाइल या फिर जो भी है, देन उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा. नाउ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन SAP आल्सो. SAP इज ERP टूल जो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं. दिस सॉफ्टवेयर इज going to be installed to the company like Tata Motors. Tata Motors people are going to use it. Okay, how to install it and while using it, how to use it, all the guidance is provided by this IT company like Infosys, IBM, Accenture, or many more are there. Okay, so they are authorized service provider. Okay, from SAP. SAP said that yes, these are the guys, they know well how to do it and we are allowing them. Okay, so अभी ये लोग जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अब वो अगर जाके कुछ भी एरर आती है, if something goes beyond that, so what happened, Tata Motors will escalate to Infosys or IBM, who is their service partner, and this service partner, if they can't handle this, so they will raise the issue to SAP Labs. Okay, so SAP Lab is nothing but SAP company only, but they called in India it is known as a SAP Lab. Okay, so it goes to SAP Lab, and then SAP Lab service provider, there are some consultant available, they took care of this kind of high priority issue which is not solved by Infosys, IBM, and Accenture consultant. Okay, so this is the way overall things happen. So here Tata Motors is your company, or we can say client, and Infosys, IBM, Accenture, those are your service provider. SAP is itself a product. Its company name is also we can say company is SAP and the product is ERP, ECC. Okay, they have product ECC, or now they are having S4HANA. Okay, and many more products they are having. Okay, so right now we are learning this ECC model. Okay, I hope everybody is clear up till now. किसी को doubt है? Ajay, are we clear? Yes, sir. Amol? Yes, sir. Yes, sir. Let's move ahead. So here what we are talking, so ये जो company है Tata Motors Limited, इसका हम organ structure देखेंगे. In this what we are going to understand, this TML is having a name as a company or client. It is the highest element in this organ structure. सबसे ऊपर क्या है? Company है. Okay, so let us understand what is meant by company or client. Or client or company. The client is the highest level in the SAP organ structure,
hierarchy. SAP store master data as well as transactional data. Now, what is this master data, transactional data? Let us understand this first. Okay, so there are three types of data. Okay, types of data. Okay, first is master data, configurational data, and transactional data. Clear? So three types of data are there. Now, what does this mean by configurational, master, and transactional data? Let us understand this. Okay, so the company code. Okay, so to create a company code, we have to follow some certain path. Okay, so let me go to SPRO. Once this is now your transaction window. Okay, guys. So this square box is called as a transaction window. Okay, clear? Vishal, samajhta hai? Hello. Vishal, everybody, are we getting what I'm teaching? Yes, So any Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। चलो, अभी ये एसपीआरओ का जो भी टी कोड है हम यहाँ पे डालेंगे। जब भी हम कोई भी आपको टी कोड के बारे में, टी कोड यानी टी यानी ट्रांजैक्शन, कोड यानी कोड। ओके, सो वट एवर टी कोड वी आर गोइंग टू लर्न, slowly you will start remembering this by doing a practice. So that is the reason I'm saying SAP is a game of practice. It is not a game of just understanding something. It's very easy to understand because you all people having almost 8 years, 6 years, 5 years, 7 years experience in business process. So business process you know very well. So that simply this business process, this is the T code. Okay, slowly you will start remembering all these things. But for that you have to do practice. If you don't do the practice, I'm extremely sorry, you will not remember anything after 5 days. Okay, so this is the transaction code, is a T code, is known as the, this is the transaction window where we are going to type a T code. Once you type a T code, then you can press enter button, then you will go to the next screen. Okay, now you are in a next window, next screen. In this screen there is a SAP reference IMG. Okay, now what is this SAP reference IMG? Whenever SAP is going to be installed for any client, so for every consultant there is a implementation guide. IMG stands for implementation guide. Okay, so through which only all consultant can do the implementation. Okay, now we will click on this part, then we will have all these different types of T codes and the list. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा, इसमें से एक एक चीज भी अंदर हम जा जाकर चीजें देखेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। सो हियर वी आर हैविंग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सो आई एम क्लिकिंग ऑन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। Now once I click on enterprise structure, I have to create a company. So I know the path is, I have to click on next is definition. Okay, so I will click on definition. So ये definition में जाके क्या करना है, ये यहाँ पे एक सिंबल दिया रखा है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा, व्हाट इज दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव विद दिस टी कोड। ओके, या इस लिंक के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, वो कंसल्टेंट को पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे देके रखा है। ठीक है, ओके, देयर इज नो डॉक्यूमेंट unfortunately. Okay, so we will go to financial accounting. Okay, so I know what is a path, so that is by heart to me. Okay, but you can know it slowly. Okay, define, यहाँ पे देखो हम जाके क्या करने वाले, डिफाइन कंपनी, हम एक कंपनी डिफाइन करने वाले, डिफाइन यानी क्रिएट करना। So okay, so if you click over here, let us see if there any documentation available over here. So see, definition of company, तो डिफाइन कंपनी मतलब क्या करने वाले हो। सो इन दिस स्टेप यू कैन क्रिएट अ कंपनी सिंपली, मतलब आपको क्या करना है, ये स्टेप में जाके क्या हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देके रखा है। कभी कभी आप वहां पे भटक के जाओगे, कोई मतलब एसपीआर में कहीं पे कुछ ढूंढ रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही है, क्लिक करूं या ना करूं, उससे पहले 10 बार सोचो, और सोचते हुए समझना है आपको कि व्हाट इज गोइंग टू अचीव थ्रू दिस ट्रांजेक्शन कोड, तो उसके पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। ठीक है, सो यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंटेशन, इट विल टॉक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव विद दिस टी कोड। सो हम इससे कंपनी क्रिएट करने वाले। ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस. This is whenever you see this kind of button, okay, alarm or a clock along with a tick mark, so this is called as a execution button. execution यानी काम चालू करना। ठीक है, whenever you click on it will say execute it, so I'm clicking it means I'm executing the next process. Okay, so now you can see there are a lot of data is available here in vertical rows and column find. So यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी लोगों ने क्रिएट करके
रखिए सिस्टम में। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का एक कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल एक कंपनी है उसका रेफरेंस ले सकते हैं। सो आई एम गोइंग फॉर पोजीशन, आई एम लुकिंग फॉर 1000 एज वन कंपनी, आई विल सिलेक्ट इट, I got it 1000 company, okay, then I will copy it। तो मैं उसका जो भी डेटा है वो कॉपी करूंगा और फिर उसको एडिट करूंगा। अभी कंपनी का नाम हम चेंज करेंगे, हम नंबर रखेंगे उसका, हमेशा हमें 4 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू भरनी है। ओके, सी देखो यहाँ पे क्लाइंट और कंपनी इज अ 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। ठीक है, तो 4 डिजिट का न्यूमेरिक कोड चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे 7 10 10 10। लेट अस सी वेदर दिस डेटा इज, हमारी बैच टाइम है इसलिए मैं नंबर ये रख रहा हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे TML B10। ओके, हम हमारा कंपनी का नाम क्या रख रहे हैं, TML B10 करके हमारी कंपनी रहेगी, या फिर नाम दिया हमने। तो एड्रेस वगैरह मुंबई मुंबई है, ठीक है, सब ठीक है। मैं अभी चेक करता हूँ वेदर दिस नंबर इज 1010 इज अवेलेबल और नॉट। लकीली nobody has used this number, so this company code is available। So what we have done, we have created a company, number is 1010, name is TML Tata Motors Limited B10। B10 हमारा बैच का नंबर इसमें मैंने डाल दिया है, जस्ट फॉर योर एग्जांपल। ओके, सो लेट अस नोट इट डाउन। सो हमने क्या क्रिएट किया अभी, कंपनी 10 10। ठीक है, कंपनी कोड, कंपनी हो गया अपनी तैयार, क्रिएटिव। तो इसके बाद we have to save it। Now once we are going to save, one TR is going to generate। TR means a transport request। What is a transport request, what is the use of it, we will going to understand at the end of all sessions, because it is a very higher level understanding। उसके पहले अभी इसमें नहीं जाएंगे, बस ये देखो कि जब भी आप कोई डेटा कॉन्फ़िगरेशन में सेव करोगे तो उसका एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है, बस इतना ध्यान रखो कि एसएपी में हम जब भी काम करेंगे तो अलग अलग सर्वर पे काम करेंगे। ठीक है, अलग अलग सर्वर यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट आता है लॉन्च करने से पहले, तो उसको पहले क्या करता है, एक डेवलपमेंट फेज होता है उसका, बराबर है, एग्रीड। या फिर एक हम क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप यानी क्या होता है, एकदम रॉ लेवल का आपका डिजाइन होता है, आपके दिमाग में डिजाइन है, आप उसको कागज पे उतारते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट। ओके, ए वेरी क्लियर, मतलब बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से काम करके उसको बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो जब फॉर्मुलाइज होता है, उसका कुछ आपको शेप दिखता है, प्रॉपर तरीके से वो प्रोडक्ट बनता है, तो उसको आप उसको क्वालिटी में लेके जाते हो। ठीक है, क्वालिटी में लेके जाते हो मतलब क्वालिटी टेस्टिंग होता है उसके ऊपर, अलग अलग टेस्टिंग किया जाता है उसके ऊपर, ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए चलेगा कि नहीं, उस चीज के लिए चलेगा कि नहीं, ये प्रोसेस के ऊपर ठीक है कि नहीं, तो उसको आप क्वालिटी में टेस्ट करते हो। और जब भी आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में पास हो जाता है तब आप उसको मास में प्रोडक्शन करना शुरू करते हो, तो आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हो। आर गेटिंग माय पॉइंट भूषण? Yes, yes, yes. विशाल, 1010 कुठून घेतला? Yes, sir. दिस इज अ रैंडम नंबर। नाही पण ते सिलेक्ट कसं झालं ते लक्षात नाही आलं. Okay, good, not an issue। Once again I will show you path। ठीक है, let's go back। We are just came inside the transaction code SPRO। okay, ओके. ठीक है, SPRO टाकल्यानंतर ना ही स्क्रीन आली। okay, now in SPRO I have click on this SAP reference IMG। okay, agreed? यहाँ तक clear विशाल? yes, sir. okay, so who is asking this question? Sorry, I don't know the name। Bhushan, you are having concern or it is raised by whom? Yes, Ajay? sir. येस. Bhushan? Okay, हा. so then we are going Ah. for this enterprise structure। So this is a path। okay, so don't worry, okay, about this path। okay, see, once you will get all the access, I'm going to share with you this kind of PDF, step by step process PDF। okay, so better you don't worry guys। okay, for your practice purpose this document is going to be available with you, you can just simply go through this document। so create company, SPR path, T code, click on SAP reference IG, new window will open। so all these details are available with you with the screenshot। okay, then go for define Okay. company, enterprise structure definition। तो ये जो स्टेप में जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ये आपको लिख के दिया जाएगा, जो कि आप बाद में प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? हम्म.
देन यू गो टू डेफिनेशन, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन में जाओगे, उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओगे आप, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफाइन कंपनी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, एक रैंडमली पुरानी जो भी कंपनी अवेलेबल है, ठीक है, एक 1000 नंबर मुझे मालूम था कंपनी किसने बना के रखी, मैंने उसी कंपनी को उठाया, उसको डेटा कॉपी किया। उसका डेटा कॉपी करने गया तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके ये 1000 नंबर को हटाकर 1010 नंबर डाल दिया, एक रैंडम नंबर मेरे हिसाब से डाला। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी रैंडम नंबर कोई भी डाल सकते हो आपके हिसाब से। फिर आपका जो भी कंपनी का नाम है, अभी यहाँ पे Okay. बीपीएल, अब आपकी कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नाम डाल दो और एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? Okay. गुड, चलो। नाउ नेक्स्ट इज कंपनी कोड। नाउ देखो, अभी हमने क्या किया, कंपनी क्रिएट की, अभी हमें क्या करना है, कंपनी कोड क्रिएट करना है। ठीक है, ये दोनों नंबर एक जैसे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स। ठीक है, तो अभी हम कंपनी कोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द कंपनी कोड? Okay, so let us understand company code definition. The company code represent a legal entity. Legal यानी it is very important from government laws perspective. Okay, so according to Indian government laws, your company should have a company code. Okay, every company which is registered in a country needs to be produced the financial statement like balance sheet. ठीक है, कोई भी कंपनी आपकी, जब आप बोलते हैं हमारी कंपनी, तो कंपनी का हर एक कंपनी का जब भी ऑडिट होता है तो उनको उनका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना पड़ता है टू देयर शेयर होल्डर, टू देयर स्पॉन्सर्स, टू देयर कस्टमर्स। ओके, सबको, कस्टमर को नहीं, लेकिन जो भी शेयर होल्डर्स है या फिर जो भी स्पॉन्सर्स है, जो भी उनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको, या और गवर्नमेंट को भी उनको बाय डिफॉल्ट दिखाना पड़ता है प्रॉफिट। ओके, तो ये सब जो होता है ये फाइनेंशियल क्लॉज है जो एप्लीकेबल रहते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल दे हैव टू हैव इट। सो ये कंपनी है और उसके लिए कंपनी कोड बनाना पड़ता है जिसके अंदर सब लीगल डेटा जाता है। सो दिस इज द लीगल एंटिटी एंड विच इज मैंडेटरी एज पर एसएपी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इन द कंपनी कोड इट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर विच कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन। तो कंपनी कोड से पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो कंपनी कोड क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो लेट अस गो इन द सेम पैथ। ओके, मैं बैक जाऊंगा एसपीआरओ में। ठीक है, वहां पे जाके कंपनी कोड क्रिएट करता हूँ। अगेन पाथ इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, रिमेंबर, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो ये फाइनेंस का पार्ट है इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपको क्रिएट करना है एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड। यहाँ पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे जाके आप एक कंपनी कोड क्रिएट करोगे। जस्ट यहाँ पे जाके न्यू एंट्री करेंगे और हमने क्या दिया था, 1010 लिखा था, तो 1011 करता हूँ मैं, और इफ समबडी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड दिस 1012। ओके, तो ये अवेलेबल है। इसका नाम दूंगा मैं यहाँ पे TML B10 कंपनी। ठीक है, सिटी है हमारी मुंबई, मान लो मुंबई रखेंगे इसको नाम। कंट्री रहेगी IN इंडिया। ओके, करेंसी रहेगी INR। ओके, लैंग्वेज रहेगी हमारी इंग्लिश, EN। ओके, सिंपल, एवरीवन क्लियर, सबको पता है अब यहाँ तक कैसे पहुंचे? एनी डाउट? Yes, sir. No, no. Sir. Then I will press enter button. Okay, and I will save it. Okay, once I save it, now it is going to ask me some more further details. Please provide the title. So what is this? This is a company, so I'm giving a title as the company name is again TML B10. Okay, you can call it B10 as a company. Okay, search title आप इसको TML B10 से ढूंढ सकते हो। इसका एड्रेस मुंबई लिख देते हैं बस। आई एम नॉट, यू कैन पुट होल डिटेल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। पोस्टल कोड, इसका एक पोस्टल कोड लिख देते हैं। ठीक है, कुछ तो डाल दिया मैंने। सिटी डालेंगे, कंट्री डालेंगे IN इंडिया। ठीक है, और अभी ये महाराष्ट्र में है तो यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा। 13 इज अ महाराष्ट्र, विच आई नो वेरी वेल। यू कैन गो एंड सर्च, ऑल इंडिया रिलेटेड स्टेट कोड्स आर अवेलेबल। ओके, सो ये यहाँ पे डाल के हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे डेटा। ठीक है, और वापस एक नया TR क्रिएट होगा तो जिससे डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरा डेटा सेव हो गया। 1012 करके मैंने एक कंपनी कोड बना लिया, 1012, दिस इज माय कंपनी कोड। ठीक है, सो गाइस व्हाट वी डिड अप टिल नाउ,
we have created company, and we have created a company code. क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर है? एक कंपनी बनाई और एक कंपनी कोड बनाया. अभी देखो ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन है. ओके, सो दिस कनेक्शन वी हैव टू डिफाइन. तो हमें ये दोनों को लिंक करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ. नहीं तो क्या है, दो एंटिटी बन चुकी है लेकिन हवा में दोनों का एक साथ कुछ लिंकेज हुआ ही नहीं अभी तक. ठीक है, तो लेट अस डू लिंकेज. तो अगेन हम जाएंगे एसपीआरओ में. ठीक है, लेट अस गो टू एसपीआरओ. अभी हम आज जो सीख रहे हैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, सो जस्ट स्टे ट्यून में. तो एसपीआरओ में आ गए हम वापस. एसपी देखो यहाँ पे देख सकते हो टी कोड एसपीआरओ है. यहाँ पे डबल क्लिक किया, एसपी रेफरेंस आईएमजी. अगेन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में अभी देखो डेफिनेशन नहीं करना है हमें, हम तो डिफाइन कर चुके. अभी असाइन करना है कंपनी को, कंपनी कोड असाइन करना है. तो ये असाइनमेंट में जाएंगे, नॉट इन डेफिनेशन. अभी क्लियर है? पहले हम कहाँ गए थे? डेफिनेशन में गए थे. अभी ये जा रहे हैं असाइनमेंट में. क्लियर है सबको? भूषण, विशाल, अजय, यस बोल. सर. Yes, sir. अभी हम जा रहे हैं गाइस फाइनेंशियल में, क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं. अभी हमें क्या करना है? असाइन कंपनी, कंपनी कोड टू कंपनी. ठीक है, सिंपल. कंपनी कोड टू कंपनी क्लिक किया, यहाँ पे ये डेटा आ गया. तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? ये देखो सीओसीडी, कंपनी कोड. सीओसीडी मैंने कंपनी कोड. अपने कंपनी कोड क्या बनाया अभी? 1012, 1, 2. राइट. ये हमारा कंपनी कोड है. एंटर करेंगे इसको तो ये देखो आ गया 1012. ये हमारा कंपनी कोड है. ये मुंबई सिटी में. तो इसका कंपनी का नंबर क्या था? 1010. परफेक्ट. तो कंपनी कोड कंपनी इज 1010. तो 1010 ये हमारी जो कंपनी है TML B10 उसका, और ये कंपनी कोड 1012 का हमने लिंकेज करा दिया. ठीक है, सेव हो गया. सिंपल. तो हमने क्या किया अभी? व्हाट वी डिड, वी हैव लिंक दिस कंपनी 1010 विद दिस कंपनी कोड 1012. ठीक है, दोनों का लिंकेज हो गया. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट एंटिटी क्या है? यहाँ पे प्लांट है. तो अभी हमें क्या करना है? प्लांट क्रिएट करना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट? प्लांट का मतलब क्या आपके हिसाब से गाइस? लोकेशन रहेगा. लोकेशन. चलो, यू आर एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, मैं आपको पूछता हूँ व्हाट डू यू कॉल्ड एज अ प्लांट? आप प्लांट किसको बोलते हो? मैं इस प्लांट में काम करता हूँ. मैन्युफैक्चरिंग होता है. एक जहाँ पे स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग होता है. परफेक्ट, गुड. और बराबर, आंसर इज करेक्ट. सॉरी, कम अगेन. जहाँ पे प्रोडक्शन होता है. परफेक्ट. जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. गुड. Yes, sir. लेट अस अंडरस्टैंड एसएपी के लैंग्वेज में प्लांट को क्या बोलते हैं. सो प्लांट इज एसएपी, प्लांट इन एसएपी लैंग्वेज इज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ अ कंपनी. देखो ये फिजिकल लोकेशन ऑफ अ कंपनी वेयर फिनिश प्रोडक्ट्स आर गुड्स, फिनिश गुड्स आर स्टोर्ड फॉर इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर. मतलब यहाँ पे फिनिश गुड स्टोर करते हैं. ठीक है, ये एक डेफिनेशन है. ये अभी सेल्स वालों के हिसाब से डेफिनेशन प्लांट का. अगर कोई सेल्स का बंदा है उसके लिए प्लांट क्या है? अरे जहाँ पे फिनिश गुड बनता है वो हमारा प्लांट है. ठीक है, अभी डिपेंडिंग अपॉन यूसेज वी कैन डिफाइन प्लांट इन 3 डिफरेंट वेज. देयर आर 3 डिफरेंट प्लांट: प्रोडक्शन प्लांट, इन्वेंटरी प्लांट एंड मेंटेनेंस प्लांट. ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लांट यानी जिसमें प्रोडक्शन होता है, इन्वेंटरी प्लांट जहाँ पे मटेरियल स्टोर इन्वेंटरी की जाती है, और मेंटेनेंस प्लांट जिस प्लांट के अंदर की मशीन का हम मेंटेनेंस करते हैं उसको मेंटेनेंस प्लांट है. इसको छोड़ दो. सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल क्या है? Plant is a location where we do process of manufacturing of finished product. Okay? It is the unit owned by the company. Guys, go on mute. Ravindra. Plant is a unit where raw material is converted into the finished product, and then the finished product is stored, and from there it can be distributed. Okay? Clear? ये clear है हमें? क्या है plant? So let us go and create one plant. Okay? Now I am going to SPRO. Okay, again. Now enterprise structure में हूँ, बराबर है. अभी हमें create करना है. Create यानी definition. Okay, going to definition. Again, अभी कहाँ जाना है हमें? What is the next step? Plant maintenance. Plant create करना है, बराबर है. So plant is a part of your logistic. Okay, तो यहाँ पे जाके define, copy, delete, check plant. और यहाँ पे जाके define plant करोगे आप. ठीक है, डोंट वरी, ये बात आपको मैं बाद में फाइल शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा. देन विल गो टू न्यू एंट्रीज और वी कैन गो टू पोजीशन एंड वी कैन टेक वन प्लांट 1000. ओके, रेफरेंस प्लांट लूंगा मैं
इसको मैं कॉपी करूंगा इसका डेटा, ये तो जर्मनी, चलो ये प्लांट लेते हैं 1010, ओके, इसको कॉपी करेंगे। अभी हमारा प्लांट का नंबर क्या रहेगा 1013, ठीक है। 1013 नंबर का एक प्लांट है, उसको हम नाम देंगे TML B10 पुणे, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे TML B10 PNE, ठीक है। ये हमारा पुणे का प्लांट है, हमने एड्रेस वगैरह सब डाल दिया, एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम डाल दो, ये कंपनी की जगह पे इसको प्लांट नहीं बोल सकते, ठीक है। कंपनी एड्रेस इसका रहेगा TML B10 सॉरी B10 PNE, ओके। इसको बोलेंगे TML B10 PNE, ओके। ओके, ओके। और ये एड्रेस हो गया, इसका एड्रेस डाल दिया, डेटा सब हो गया, इसको सेव करेंगे। तो 1013 करके हमने एक प्लांट बना लिया, ओके टीम। 1013 इज माय प्लांट, क्लियर? हेलो, यस सर। सर यस सिंपल। Yes. हमने प्लांट बनाया, अभी क्या करना पड़ेगा, ये प्लांट और ये कंपनी कोड का लिंकेज करना है, राइट। तो मतलब असाइनमेंट में जाना है, तो वापस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वन स्टेप बैक, वन मोर स्टेप बैक, वन मोर स्टेप बैक, ओके। SAP रेफरेंस IMG, ओके। देन गो टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन गो फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट में जाके क्या करेंगे, लॉजिस्टिक जनरल और असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, सिंपल असाइन, ओके। और यहाँ पे जाके पोजीशन में जाके ढूंढोगे प्लांट 1013, आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आपको न्यू एंट्री क्रिएट करनी है। कंपनी कोड क्या है आपका 12 1012, परफेक्ट। और प्लांट कोड क्या है आपका 1013। ओके, ग्रेट, ओके। एंड देन यू विल प्रेस एंटर बटन। देखो, तो ये आपका प्लांट, ये आपका प्लांट का नाम और ये कंपनी का नाम, ये दोनों का लिंकेज एस्टेब्लिश हो गया, ओके, क्लियर। दिस इज द वे वी हैव क्रिएटेड प्लांट एंड उसका लिंकेज कंपनी कोड के साथ कर दिया। अब नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज लोकेशन? वेयर हाउस। या टेल मी, स्टोरेज लोकेशन क्या होता है आपके यहाँ पे, आप किसको स्टोरेज लोकेशन बोलते हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोरेज लोकेशन? जाग मटेरियल स्टोर करते हैं हम लोग। इन्वेंटरी, राइट, जहाँ पर सर हम फिनिश गुड प्रोडक्ट वहाँ पे सेव करके Perfect. रखते हैं, Perfect. स्टोर करके रखते हैं। perfect. Storage location is a physical location where stock of material, raw material, semi finished product, finished product और any kind of material, scrap भी होगा तो उसका भी एक स्टोरेज लोकेशन रहता है ना आपका, ठीक है कि नहीं? तो हर एक चीज का एक रखने का प्रॉपर जगह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज लोकेशन। फिनिश प्रोडक्ट हो, सेमी फिनिश हो, रॉ हो, आपका पैकेजिंग मटेरियल हो या आपका स्क्रैप मटेरियल हो या एनी काइंड ऑफ मटेरियल जो भी है उसको स्टोर करने की लोकेशन है, तो उसको बोलेंगे स्टोरेज लोकेशन। So in one company there might be multiple storage location, okay. One plant can have number of storage location, but storage location should be defined under one plant, ठीक है। And it is also 4-digit alphanumeric key, okay. Alphanumeric यानी देखते हैं अभी। So let us go to creation mode, okay. अभी चलो वापस जाते हैं SPRO पाथ में, SAP रेफरेंस IMG, okay. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, नाउ अभी कहाँ जाना है, असाइनमेंट में जाना है या डेफिनेशन में जाना है? पहले स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना है तो डेफिनेशन। डेफिनेशन, परफेक्ट। तो वी विल गो टू डेफिनेशन। डेफिनेशन पे जाके हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लॉजिस्टिक में नहीं जाएंगे, फाइनेंशियल में जाएंगे अभी मटेरियल मैनेजमेंट में, क्योंकि मटेरियल स्टोर करते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए स्टोरेज लोकेशन आपको मिलेगा कहाँ पे, मटेरियल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जाके मेंटेन स्टोरेज लोकेशन क्लिक किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्या डालना है, प्लांट डालना है। प्लांट क्या है अपना, कौन से प्लांट के लिए कर रहे हैं हम, 1013 बराबर है। एंटर करेंगे,
और यहाँ पे जाके हम करेंगे न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज पहला क्या है अपना फिनिश प्रोडक्ट, तो बस हम लिखेंगे फिनिश का मेरा FG01, ये मेरा क्या है फिनिश गुड, फिनिश गुड स्टोरेज लोकेशन। फिर लिखूंगा SFG1 सेमी फिनिश सेमी फिनिश, लिखूंगा RAW1 और रॉ मटेरियल, मतलब अल्फाबेटिक्स एंड न्यूमेरिक बोथ कैन बी ऐड। ओके, इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे रॉ रॉ मटेरियल। मटेरियल, अभी मेरा स्क्रैप का है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रैप, SCRP स्क्रैप, ठीक है, तो मेरा स्क्रैप हो गया। मैं बोल सकता हूँ मेरा पैकेजिंग का PKCG, तो दिस इज बिकम माय पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल का, ठीक है। So this is the way we can create a storage location, ठीक है। ओके, तो अभी हमने क्या किया गाइस, लोकेशन बना स्टोरेज लोग स्टोरेज लोकेशन बना दी। अभी क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज लोकेशन को किसके साथ लिंक करना पड़ेगा, प्लान। प्लांट के साथ। जरूरत है यस सर। नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हमने क्रिएट किया तभी पहला स्टेप क्या था, हमें प्लांट बनाना बताना था। तो ऑलरेडी प्लांट के साथ स्टोरेज लोकेशन का क्रिएशन के वक्त ही लिंकेज हो चुका है, तो ये स्टेप अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये प्लांट के अंदर ही हमने स्टोरेज लोकेशन बना ली है। तो दिस इज द वे योर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। क्लियर, यस सर। एनी डाउट अप टिल नाउ? Yes, sir. No, sir. No doubt. Perfect. yes, So this is the way you have to do practice and create your existing company, or take any random company as example. At least you should create a company code, assign company code to company, then create a plant, assign that plant to company code, and then create a storage location within that plant. Okay, so this is your assignment for tomorrow. So before joining next session you should able to complete this. Okay, तो थोड़ा आगे जाते हैं अभी। तो दूसरा है आप ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का बंदा है, तो उनके लिए क्या स्ट्रक्चर, sorry guys, there is noise from my side. Okay, so if you see the organization structure, you can see that there is a company, there is a company code, but instead of plant, before plant and company there is a purchasing organization. Now यानी मटेरियल मैनेजमेंट, तो ये लोगों को परचेसिंग करना पड़ता है, तो उनका एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये इनका एक डिपार्टमेंट है जो पूरे प्लांट का एक सेंट्रली होता है, जो 2-3 प्लांट का भी एक साथ परचेसिंग के रिलेटेड का सब डेटा उनके साथ पास में रखता है। तो वो एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। और उसके बाद प्लांट होता है, जैसे हमने प्लांट किया सिमिलरली प्लांट, उसके बाद आता है परचेसिंग ग्रुप। परचेसिंग ग्रुप यानी क्या, अभी देखो आपके प्लांट के अंदर रबर मटेरियल प्रोक्योर करना है, या फिर प्लास्टिक मटेरियल प्रोक्योर करना है, या फिर इलेक्ट्रिकल है, या फिर मेटल कंपोनेंट है, तो ये सब प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग लोगों का ग्रुप होता है। 2-2, 3-3 लोग मिलकर अलग अलग एंटिटी संभालते हैं, ठीक है। कोई कमोडिटी संभालेगा, कोई मेटल कमोडिटी संभालेगा, कोई केमिकल संभालेगा, कोई रॉ मटेरियल का ये होगा वो संभालेगा। सो अलग अलग लोग होते हैं, तो उनके लिए एक अलग अलग ग्रुप होता है, तो उनके ग्रुप का एक नंबर क्रिएट कर जाता है, उसको परचेसिंग ग्रुप बोला जाता है। So this is the organization structure for This is just for information. We are not going to learn it because it is not a part of PP team. Okay? Clear? Any doubt on this? no sir, Just for example, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए, आप जाके सुनोगे फ्यूचर में। तो देन SD यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा लॉजिस्टिक के लोग होते हैं या फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लोग होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एसएमई में कैसा होता है, उनके पास कंपनी होती है, कंपनी कोड भी होते हैं, उसके नीचे होता है उनके पास सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक अलग से, ठीक है। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंडर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी वो अपने मटेरियल को कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, लेकिन मान लो कि टाटा मोटर से अगर वो पुणे में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनका
ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, ऐसे अलग अलग रीजन रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेंगे। फिर उनके सेल्स ऑफिस रहते हैं, मतलब पुणे में एक सेल्स ऑफिस है, नागपुर में एक है, नॉर्थ में है, साउथ में है, हर जगह पे तो सेल्स ऑफिस है। और सेल्स ऑफिस के अंदर सेल्स ग्रुप है, मतलब सेल्स ग्रुप मैंने एक सेल्स ऑफिस है उनका, उसके अंदर वो कमर्शियल व्हीकल बेचने वाले एक लोग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचने वाले लोग अलग है, डीजल व्हीकल बेचने वाले अलग लोग है। सो दिस इज द वे दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज सेल्स ग्रुप। ओके, so this is the way a very higher level structure of SAP SD is available. Okay, but our main focus should be to learn this, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो, as a SAP PP consultant in the future you never have to create anything like this. Okay, आपको ऐसा कुछ create नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। So this is the reason I am taking this first part, because इसके आगे जाके बार बार हम बोलेंगे ये प्लांट क्रिएट करो, ये प्लांट के अंदर ये मॉडल क्रिएट करो, ये स्टोरी लोकेशन असाइन करो, ये प्लांट कैसे बनता है, ये स्टोरी लोकेशन कैसे बनती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये सेशन हमने सबसे पहले रखा है, ठीक है। Okay, sir. ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अप टिल नाउ? No, sir. No. We are good. So guys, we will stop our today's session.